Hello and welcome to Mentoring the Mentors. We help you accelerate your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Narula. As we have been talking about arts integration in various subjects, today we'll be talking about arts integration in biology, 11th standard, and the theme is Ascent of SAP. And we'll be talking about how we can integrate visual arts in biology. So, my lovely educators, first we'll be talking about the targeted learning outcomes. Like by the end of this lesson, we want our learners to relate the processes and the phenomena with the causes and effect, such as transpiration pull is related with the absorption of water by roots of plants. तो किस तरीके से वो cause and effect analysis करके various phenomena जो हैं इस topic से related, इस theme से related वो उसको समझ सकते हैं. Making linkages at the interface of biology with other disciplines. Biology को दूसरे discipline के साथ relate करके interdisciplinary concept को समझना, such as geometric growth rates in plants and organisms. किस तरीके से growth rate जो है वो affect होता है, किस तरीके से वो change होता है in plants and organisms, and handle laboratory tools and apparatus, instruments and devices properly for performing activities. Different activities perform करने के लिए lab के अंदर जो different tools हैं, apparatus हैं, instruments हैं, devices हैं, उनको properly handle करना आना चाहिए ताकि वो experiment properly कर सकें, investigate कर सकें, using fold scope, using microscope for observing the internal structure of transverse section of the roots, stems and leaves, right? मतलब इस तरीके से बच्चे समझ सकें क्लोरोप्लास्ट की क्या इंट्रिकेसीज हैं, स्टोमेटा के डिटेल्स उसको समझ सकें. कैसे समझेंगे? जब वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को, इन डिवाइसेस को अच्छे तरीके से सेपरेटर्स को यूज करना सीखेंगे. तो ये भी हमारा क्या है, एक लर्निंग आउटकम है. Now, draws conclusion on the basis of data collection in activities. Different activities में, experiments में जब वो data collect करेंगे उसके basis पर they'll be able to conclude, right? ताकि उनको पता चले कि जैसे different experiment करेंगे वो, while talking about transpiration, osmosis, plasmolysis and diffusion, right? And apply scientific terminology for organisms, processes such as systematic technical description of flowers. जब वो फ्लावर्स की टेक्निकल डिस्क्रिप्शन करेंगे उसमें वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज कर पाएंगे, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है. एंड कम्युनिकेट्स द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स इफेक्टिवली सच एज दोज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स बोथ इन ओरल एज वेल एज रिटन फॉर्म. वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन है, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन है, चाहे वो जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेशन है. एंड एग्जिबिट क्रिएटिविटी इन डिजाइनिंग मॉडल्स यूजिंग only eco-friendly resources and in preparing charts, paintings, sketches, etc. And exhibit ethics and values of honesty, objectivity, rational thinking, and freedom from myth and superstitious beliefs while taking decisions. साइंस जब आप पढ़ा रहे हो, ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट क्या लर्निंग आउटकम एग्जिबिट करें, कि वो किसी भी तरीके की उनके मन में कोई भ्रांति, कोई भ्रम, कोई सुपरस्टिशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई मिथ नहीं रहनी चाहिए. दे शुड बी एबल टू डेवलप साइंटिफिक attitude, scientific temperament should be developed in the students, and make efforts to conserve the environment, realizing the interdependency and interrelationship in the biotic and abiotic factors of the environment. ये हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है कि बायोटिक एबायोटिक एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, यानी उनका रिलेशनशिप. एंड अप्लाइज लर्निंग टू हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, राइट? तो ये हमारी क्या है, लर्निंग आउटकम्स, राइट? तो इसको हम शुरुआत इसकी कैसे करेंगे? डे 1 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन. तो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ टीचर मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है? मैंने लर्निंग आउटकम्स डिफाइन कर दी, that I want my student to exhibit at the end of the session. अब हर चैप्टर के ओ मैं किस तरीके से डिवाइड करूंगी कि मेरा उसके साथ में क्या मेरा जो है वो ऑब्जेक्टिव है, मैं आज के इस दिन में क्या बच्चों को सिखाना चाहती हूँ ताकि वो एक पर्टिकुलर जो लर्निंग आउटकम्स है उसको एग्जिबिट कर पाए. To enable the students to understand the process of transpiration and how it is affected by variation in the flower stalk. कि ट्रांसपिरेशन उनको पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से ये फ्लावर की जो स्टॉक है उसके वेरिएशन से कैसे वो अफेक्ट होता है. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है हमने बताया कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, एंड टीचर कैन टेक
the help of the video, like videos, they are there on NCERT official channel. You can take any other videos available on YouTube as per your choice. And इसमें task क्या है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो in this activity students will explore the process through which water travels up the flower stalk by gathering flowers with stalks of varying thickness. हम flowers लेंगे अलग अलग जो इनकी स्टॉक की थिकनेस होगी, कोई पतला है कोई थिक है, अलग अलग रेंज के अलग अलग जो स्टॉक के जो हमने फ्लावर्स हैं वो ले लिए, उनकी लेंथ भी अलग अलग है. नाउ दीज आर प्लेस्ड इन द कलर्ड वाटर. एज द वाटर rises up the stem at varying rates, the students they will discover and understand how the variation in the flower stalk affect the rate of the water uptake. Right? For example, a tubular fleshy stalk would allow quicker uptake of the water than a narrow woody stalk. Right? वुडी है या वो फ्लैशी है, राइट? किस तरीके की उसकी स्टेम है वो उसको अफेक्ट करेगी कि किस तरीके से जो है वो फ्लो होता है, राइट? तो ये एक्सपेरिमेंट जो है आप अपने लेबोरेटरी में जाकर करा सकते हैं, आप अपने क्लास के किसी कॉर्नर को भी यूज कर सकते हैं जहां पर कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, राइट? तो इसमें क्या है, द फैसिलिटेटर अलोंग विद द स्टूडेंट्स मेक्स 3 to 5 कलर्ड सॉल्यूशंस, अलग अलग कलर के सॉल्यूशन बनाएंगे. तो हम ये एक्सपेरिमेंट जो है वो करके देखेंगे. तो फैसिलिटेटर क्या करेगा कि इसको एक्सप्लेन करेगा इस प्रोसेस को कि किस तरीके से जो है वो अलग अलग कलर जब जा रहे हैं, उनकी फ्लावर की पेटल्स कैसे अफेक्ट हो रही हैं, कलर चेंज हो रहा है, कितनी देर में हो रहा है, कितना अफेक्ट आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे. तो ये आपका हो गया हैंड्स ऑन एक्टिविटी. और इसके साथ में अगर आप आर्ट एक्टिविटी को देखें, नाउ द स्टूडेंट्स नो हाउ ट्रांसपिरेशन वर्क्स. द फैसिलिटेटर नाउ डिवाइड्स देम इनटू ग्रुप्स. ग्रुप्स में आप डिवाइड करेंगे एंड लेट देम डिसाइड व्हिच कलर्स दे वांट टू वर्क विद. They can use warm colors, they can use cool colors like colors of fire, red, yellow, orange, or maybe cool colors जैसे colors of water, blue, green, purple. As you can see here, तो ये हमारा क्या है, एक कलर व्हील है, राइट? तो इसमें से अपनी चॉइस के वो कलर यूज कर सकते हैं. उनको एनकरेज करेंगे कि वो अपने कलर्स जैसे भी व्हील कलर में से उनको अच्छा लगे तो उसको वो कलर्स जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट? दे कैन पिक एंड चूज. दे विल नाउ सिलेक्ट and identify the flowers of different colors and give the changed color of those flowers after immersing them in the color of their own choice. कि अपनी choice का जो कलर है उसमें जब एक पर्टिकुलर कलर का फ्लावर डालेंगे तो उसके पेटल्स में कौन से कलर रिफ्लेक्ट होगा, क्या चेंजेस आएंगी. तो इसमें क्या है, आप कलर व्हील उनके साथ में डिस्कस कर रहे हो. तो ये आपका क्या है, आर्ट्स इंटीग्रेशन. नाउ दिस एक्टिविटी कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड वेयर स्टूडेंट्स मेक अ बुके ऑफ फ्लावर्स एंड क्लिक अ फोटोग्राफ ऑफ द फ्लावर बुके. Further, they can also prepare a presentation documenting the process of changing colors of the flowers, right? आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि किस तरीके से वो अपना बुके क्रिएट करें अपने कलर्ड किए हुए फ्लावर्स के थ्रू, एंड दे विल बी प्रेजेंटिंग द सेम टू आपके स्कूल में. डिग्निटी ऑफ आप लेबर सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप किसी भी कर रहे हैं, किसी आपके स्कूल के जो है सपोर्ट स्टाफ को आप एक जैसे कहते हैं ना, थैंकफुल थर्सडे, थैंकफुल ट्यूसडे, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट पर्टिकुलर डेज सेलिब्रेट करते हैं. तो उस दिन एक पर्टिकुलर आप चूज करेंगे किसको आपको थैंक यू करना है, किसको बुके देना है, और मे बी आप स्कूल में टीचर को दे सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को दे सकते हैं. जिस भी तरीके से जो है आप में भी आपके अगर स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है तो गेस्ट के लिए आप चाहते हैं कि बच्चे खुद बुके बनाएं, फ्लावर्स अपने आप वो करके, तो क्या होता है कि आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं. इंटीग्रेट द सेम कि किस तरीके से स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया उस एक्टिविटी में. नाउ द टीचर और द फैसिलिटेटर विल ऑब्जर्व केयरफुली एज स्टूडेंट्स कैरी आउट द flower bouquet part of the activity. They should be able to articulate their decisions on the choice of the flower, including the thickness and the length of their stems, right? तो ये हमारी हो गई day 1 की activity, right? Now, if I talk about day 2 की अगर एक्टिविटी की बात करें तो नाउ हमने ट्रांसपिरेशन कवर कर लिया. डे 2 वी आर कवरिंग ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस, राइट? तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप स्टूडेंट को ये प्रोसेस समझाना चाहते हैं, राइट? तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए जहां पे जब एक्टिविटी एक्सप्लेन की है, ये एक्टिविटीज आपके ऑलरेडी एनसीईआरटी की बुक में है, राइट? तो आपने ये एक्टिविटी क्या किया कि फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस, आपने पोटैटो के स्लाइस लिया, उसको एक डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस किया एंड इट विल टेक अप सम वाटर एंड बिकम स्वोलन विद वाटर. तो ये प्रोसेस क्या हो गया हमारा, ऑस्मोसिस. व्हेन द वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड
right, the potato through the potato membrane to a place of lower concentration inside the potato, thus causing the potato to swell up. So the print taken of this potato slice will have a certain size and shape. Now, when a similar potato is placed in a high concentrated salt solution, it will lose water and shrivel up. So this process is known as plasmolysis. तो आपने बच्चों को osmosis और plasmolysis दोनों चीजें जो हैं इस एक्टिविटी, इस एक्सपेरिमेंट को करके आपने समझा दिया, और आपके पास एक वीडियो लिंक भी है, वीडियो लिंक भी बच्चों को दिखा सकते हैं, और उसके बाद में आप स्टूडेंट्स को इलेबोरेट कर सकते हैं इस वीडियो के ऊपर. यू कैन हैव सम Q&A, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और इसको इलेबोरेट कर सकते हैं. यू कैन एक्सटेंड देयर लर्निंग, राइट. तो स्टूडेंट्स को ये दोनों प्रोसेस जो है इस एक्टिविटी के द्वारा समझ में आ जाएंगे. अब हमारे पास क्या टास्क है? फर्स्ट द स्टूडेंट्स विल कैरी आउट द ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग एक्टिविटी. देखिए, इसके साथ आपने जो कट आउट किया है, आप ब्लॉक प्रिंटिंग एक्टिविटी करा सकते हैं. देन दे यूज्ड टू डू इन द दैट दे यूज्ड टू डू इन द लोअर ग्रेड्स. छोटी क्लासेस में भी आपने ब्लॉक प्रिंटिंग की एक्टिविटी करवाई होगी, अगर नहीं कराई तो आप करा सकते हैं. सो दे कैन carve a potato slice into a design, dip in the paint and press firmly and quickly on a paper to make a print, and students will enjoy this familiar art activity. The facilitator will then move on to making variations in the potato design using scientific concepts, right? तो आपकी क्या है, ये आर्ट इंटीग्रेशन की एक्टिविटी है, ब्लॉक प्रिंटिंग की आप एक्टिविटी कर रहे हैं. Now the facilitator cuts a potato in half and dips the cut surface in the small plate with poster paint and make a print on the paper by pressing it down. Now the potato makes a nice rounded print. Now the students will add a teaspoon of salt and half a cup of water. The facilitator calls the student to take out the potato at regular intervals and use it to make a print by dipping it in the paint. Students watch as the potato shrivels and shrinks because the higher saturation of the salt solution outside will make the potato shriveled. Now make more prints and see the potato shape. कि अलग प्रिंट बना रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप शेप को भी नोटिस कर रहे हैं और आपकी आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी भी हो रही है. The facilitator encourages the group of the students to carry out the same experiment and use the potato at various stages of the dehydration as blocks to dip in the colored paint and make interesting prints on the sheets of the newspaper to make beautiful gift wrapping paper. Now the students are encouraged to choose the paint colors. अपनी पसंद के वो रंग चूज कर सकते हैं, अपनी पसंद की शेप्स और डिजाइन चूज कर सकते हैं जो उन्होंने पोटैटो के जो पीस है उसको डिहाइड्रेट करते हुए अलग अलग साइजेस में बनाया, राइट, टू ऐड विजुअल इंटरेस्ट टू द नोटबुक. उससे अपनी नोटबुक्स को कवर कर सकते हैं. तो आपने किसी चीज को वेस्ट नहीं किया. गिफ्ट रैपिंग पेपर के लिए भी कर सकते हैं, नोटबुक को भी कवर कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ whatever they are learning, whatever they are creating, they are using it also, right? तो ये आपकी हो गई आर्ट इंटीग्रेशन. देखिए, हमने 2 एक्टिविटीज की हैं. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट डे 3, uniport, antiport and symport to enable the students to deduce the function of the gatekeeper of the channel protein. This will further enable them to clearly understand the different kinds of facilitated diffusion. Diffusion के जो different kinds हैं उनको ये समझ में आएंगी. तो uniport obviously allows one kind of molecule to pass through. Symport allows the 2 kinds of molecules to pass through in the same direction. And antiport, as the name clearly signifies, allow the 2 molecules to pass through in 2 different directions, right? Anti means different. So teachers can take the help of these videos also. They are available on NCERT, right? You can check it out, in transportation in plants, or you can also check it out some other videos available on the YouTube. तो ये आपने बच्चों को समझाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है. तो इसकी टास्क क्या है? टीचर स्टार्ट्स द गेम वेयर इन सम स्टूडेंट्स प्ले द रोल ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, राइट. बच्चे क्या कर रहे हैं कि गेम है, अब हमारा गेमिफिकेशन इसमें आ रहा है कि स्टूडेंट्स रोल प्ले कर रहे हैं कि वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिनोटेड बाय डिजाइंस ऑफ सर्कल एंड ट्रायंगल. उनके आप लेबल कर सकते हैं, हेड गियर बना सकते हैं, राइट. गले में आप कुछ भी आप नेक पीस डाल सकते हैं, राइट. जैसे भी आप करना चाहें ऐसे आप एक्टिविटी को कर सकते हैं. एंड सम स्टूडेंट्स प्ले द रोल ऑफ द गेटकीपर्स हु आर द 3 काइंड्स ऑफ द चैनल प्रोटीन्स. बाय ऑब्जर्विंग द काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल, वो देखेंगे कि कौन सा
मॉलिक्यूल आ रहा है, एक मॉलिक्यूल को जाने देना है, यूनिपोर्ट है, या दो सिमिलर काइंड है, सिमिलर डायरेक्शन में जाएंगे, सिमपोर्ट है, या अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, एंटीपोर्ट है। तो क्या है कि आपने एक गेम क्रिएट कर दिया जिसमें कि गेमिफिकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स दे आर लर्निंग। आर्ट इंटीग्रेशन आपका हो गया थ्रू गेमिफिकेशन। नाउ स्टूडेंट्स विल पिक चिट्स which will identify them as a molecule A और molecule B और gatekeeper कि वो यूनिपोर्ट है, सिमपोर्ट है या एंटीपोर्ट है। तो चिट्स उनको डिसाइड करेंगी, उनको नहीं पता क्योंकि वो क्या दे कैन पिक एंड चूज ऑल्सो ऑफ देयर रोल, या दूसरों को गेस करना है कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, तो जो उनके पास चिट पर आया बाकी ऑडियंस गेस करेगी। सो देयर विल बी only 2 chits to represent each type of gatekeeper, resulting in a total of not more than 6 gatekeepers. So it is important at this stage that those who are the gatekeepers do not reveal which type of gatekeeper they are, because बाकियों को guess करना है, right? So each student will make a simple costume as per one's role. आप जैसे मैंने पहले बोला कि neck piece बना सकते हैं, headgear बना सकते हैं, राइट तो A4 साइज चीज को यूज करके आप वो बना सकते हैं। दिस विल मेक अ होल एट द टॉप कॉर्नर, जॉइन द पेपर्स टू ईच अदर sorry with a string that's long enough that the students can put one's head through the gap created by the string with one paper on their chest and the other paper on their back, right? आप पूरा वो नेक में ऐसे उसको पहन सकते हैं। Now the students who act as a molecule A are encouraged to fill their sheets with any pattern using maybe triangle ही triangle सारा fill करेंगे वो, right? And students who act as molecule B fill their sheet with any pattern, कोई भी pattern बना सकते हैं circle के through. The gatekeeper may decorate their costume using any color, right? कि मैं एक एंटीपोर्ट हूँ या यूनिपोर्ट हूँ या सेम पोर्ट हूँ। इस तरीके से क्या है, एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो आप इसके लिए एक एक्टिविटी कंडक्ट करा सकते हैं अपनी क्लास में। देखिए हमने कितने सारी चीजें आर्ट इंटीग्रेशन वाली कवर की हैं इसमें, राइट? देखिए हमने क्या क्या कवर किया है इस टॉपिक में। हमने एक गेम के थ्रू पढ़ाया, दैट इज विजुअल आर्ट। वीडियोस भी दिखाई हैं स्टूडेंट्स को, ब्लॉक प्रिंटिंग कराया है साइज बताने के लिए, ऑस्मोसिस and plasmolysis, and then we have also talked about initially हमने जो है वो ये व्हील जो है कलर व्हील उसके थ्रू स्टूडेंट्स को बताया था, जिसमें कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। इस तरीके से आप ऐसे एक्टिविटीज के थ्रू आर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है। In our next videos, we'll be talking about more topics and more subjects. For that, what you have to do, stay tuned at Mentoring the Mentors. Have a nice day.